નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દીમાં આપણો પાઠ જે એકાંકી છે ભરત મિલાપ. તો મિત્રો, આ એક એકાંકી એ જે એક પ્રસંગ છે એ રામાયણમાંથી લેવામાં આવેલ છે. રામાયણનો એક પ્રસંગ આપણને અહીં આપવામાં આવેલ છે. તો મિત્રો, પાઠની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં થોડું આપણે રામાયણ વિશે જાણકારી મેળવી લઈએ. તો તમે સિરિયલ જોતા હોય રામાયણ તો તમને ખબર હશે કે ભરત કોણ છે, બરાબર? તો આપણે થોડી વાતો કરી લઈએ. તો મિત્રો, આપણા ભારત દેશમાં આવેલ રાજ્ય છે ઉત્તર પ્રદેશ, જેમાં અયોધ્યા નામે નગરી છે. ત્યાં દશરથ રાજા નામે રાજા હતો. એ રાજાને 3 રાણી હતી, કૌશલ્યા, કૈકેયી અને સુમિત્રા. અને તેમના 4 પુત્ર હતા, જેમાં રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન. રામ એ કૌશલ્યાના પુત્ર હતા, ભરત એ કૈકેયીના પુત્ર હતા અને લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન એ સુમિત્રાના પુત્ર હતા. મિત્રો, દશરથ રાજા એ રાજા હતા અને ખૂબ જ સારા રાજા હતા. તેમને પ્રજાનું રક્ષણ કરવું અને રાજ્ય વહીવટ પ્રજાના હિતમાં ચલાવવામાં આવતા હતા. તો રામ એ ભગવાન છે, આપણને ખબર છે, બરાબર? રામ એ ભગવાન અને જે 4 જે ભાઈઓ હતા એ ભાઈઓ પણ એકબીજાને પરસ્પર ખૂબ જ પ્રેમ હતો. તો જ્યારે રામ મોટા હોવાથી દશરથ રાજા જ્યારે સિંહાસન પર બેસાડવાની વાત કરે છે ત્યારે મોટા પુત્રનો અધિકાર હોય છે. તો મોટા પુત્ર તરીકે રામને સિંહાસન પર એટલે રાજા બનાવવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે જે રાણી કૈકેયી છે એ દશરથ રાજા પાસે 2 વરદાનની માંગણી કરે છે અને એ 2 માંગણી કરે છે. જ્યારે વરદાન, જેમાં પહેલી માંગણી એ ભરતને રાજા બનાવવા માટે કહે છે અને બીજું વરદાનમાં કહે છે કે રામને 14 વર્ષનો વનવાસ અપાવવા માટે કહે છે. તેથી રાજા ખૂબ જ દુઃખી થઈ જાય છે અને રાજા તે દરમિયાન બીમાર થઈ જાય છે. તો એ દરમિયાન ભરત એ એમના મામાના ઘરે હતા અને આ તરફ તેમની માતા રાજા દશરથ પાસેથી આ માંગણી કરે છે. અને રામ એ નાનપણથી જ માતા પિતાનો કહ્યું માનવું, માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ એમનો પહેલો ધર્મ હતો. જેથી એ વનવાસ માટે તૈયાર થાય છે. 14 વર્ષનો વનવાસ માટે તેમની સાથે ભાઈ લક્ષ્મણ અને સીતા માતા જવા માટે તૈયાર થાય છે અને વનવાસ માટે તેઓ નીકળી જાય છે. આ તરફ જ્યારે મોસાળમાંથી ભરત અયોધ્યા આવે છે એમના મામાના ઘરેથી, ત્યારે આ બધી વાતનું ખબર પડે છે. ત્યારે તે ખૂબ જ દુઃખી થઈ જાય છે અને એમની માતાને એ કૃતજ્ઞ ઠેરાવે છે અને કહે છે કે તે જે મોટું પાપ કર્યું છે તેના માટે હું ખૂબ જ દુઃખી છું. એમની માને કહે છે, એમની માતાને કહે છે કૈકેયીને કે તે સારું કર્યું નથી. તેથી ભરત અને રામ વચ્ચે ખૂબ જ પ્રેમ હોય છે. કહેવાય છે કે ભાઈ હોય તો ભરત જેવા. તો એ ભરત એ રાજગાદી સ્વીકારવા માંગતો નથી, પરંતુ રામ તો વનમાં ચાલી ગયા હતા. જેથી
એ રામના આશીર્વાદ લેવા માટે, રામને પાછા અયોધ્યા બોલાવવા માટે એ વનમાં જાય છે, તે પ્રસંગ આપણે પાઠ તરીકે એકાંકીમાં આપવામાં આવેલ છે, એ આપણે આજે જોવાનો છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. ભરત મિલાપ. मिलाप એટલે मरवू. माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए. उनके साथ सीता भी गई. भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया. इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा. देखा बच्चों आपने कि भरत को राजघाट नहीं चाहिए था, इसीलिए वो सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे. वो राम के पास जाते हैं और जो उसके खड़ाऊ लेकर आते हैं. तो इसके बारे में हम जानेंगे. वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं. વનમાં कुटिया એટલે કે झूपड़ी. कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए थे. पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े थे. लक्ष्मण जो अपने भाई की सेवा करने हेतु उसके साथ वन में गए थे. दृश्य 1. राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है. लक्ष्मण इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं. राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो. राम और सीता कुटिया के बाहर जब बैठे हुए थे तब उनको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही. तो उन्होंने लक्ष्मण जो पास में खड़े थे उसको बोला कि भाई लक्ष्मण जरा देखो ये आवाज़ कौन सी है, कौन आ रहा है, जरा देखो. तो लक्ष्मण इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं. राम ने कहा, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो. राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो. लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं. લક્ષ્મણ થોડો ગુસ્સાવાળા હોય છે, તો લક્ષ્મણને એવું લાગે છે કે ધ્યાનથી જોઈને કહે છે કે અરે ये तो भरत है, ये तो भरत है और साथ में कुछ लोग भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए. सावधान हो जाना चाहिए मुहावरा यहाँ पे है, तो इसका क्या अर्थ होता कि चौकन्ना हो जाना चाहिए. शायद वे लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं. लक्ष्मण ये राम को बताते हैं. राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना. राम भरत को जानते थे कि भरत कैसा है. बचपन से ही वो चारों भाइयों के एक दूसरे में इतना प्रेम भाव था और इसीलिए राम सब जानते थे कि भरत का व्यवहार कैसा है, भरत कैसा है, वो सब कुछ राम जानते थे. लेकिन माता पिता की आज्ञा है इसीलिए राम वन में आए थे. तो भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष हम साथ रहे हैं फिर भी आपको भरत को नहीं पहचाना, कैसी बात कर रहे हो. ऐसे बिना वजह शक नहीं करते, ऐसे समझाते हैं लक्ष्मण को. लक्ष्मण उत्तेजित होकर એટલે કે ये वहाँ भी मुहावरा गुस्सा होना, उत्तेजित होना. पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया है. लक्ष्मण गुस्से से बोलता है कि क्यों नहीं पहचानता हूँ,
कि उसी माँ का बेटा है जिसने आपको वनवास दिलवाया है। ये कैकेयी का बेटा है, कैकेयी ने तो आपको वनवास दिलाया है और भरत को राजगादी, तो उसी माँ का बेटा है तो उसी के जैसा होगा, ऐसा लक्ष्मण राम को कहते हैं। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीता माँ बोलती है कि माँ कैकेयी ने वनवास दिलवाया, तो इसमें भरत का क्या दोष है, ऐसा कहते हैं। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। दृश्य 2, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत राम को देखकर दौड़ते हुए चले आते हैं कुटिया के निकट। निकट એટલે પાસ, कुटिया એટલે झोपड़ी, झोपड़ीनी पासे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनकी आंखों से, भरत की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। क्या करते हैं, भरत जैसे ही राम के पास आते हैं वो राम के चरणों में, पैरों में पड़ते हैं और राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। ये दृश्य आप लोग देख सकते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत क्या बोलते हैं राम को कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। कहते हैं कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं, आप तो मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। जो बड़े बेटे होते हैं उसी को राजा बनाया जाता है। लेकिन कैकेयी ने वरदान से राम को वनवास दिला दिया था, इसीलिए भरत बहुत दुखी होता है और रोते हुए राम को ये सब कहते हैं। मैं आपको लेने आया हूँ। भरत क्या कहते हैं राम को कि मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों को भी यही अच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। नगरवासियों जो है वो भी, भरत भी एक अच्छा था। सभी दशरथ राजा के चारों बेटों, सभी में वो गुण था, लेकिन जो राम को नगरवासियों, राम जब राजा बनने जा रहा था तब अगली सुबह राजा बनने जाना था और अगली रात को वो नगरवासियों ने बहुत से नगर में रोशनी जलाकर खुशियाँ मनाई थी, क्योंकि सुबह हमारे नगर का राजा राम बनने जा रहे हैं, इसीलिए तो नगरवासियों भी बहुत खुश थे। तो ये सब भरत राम को आके कहते हैं, राम भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। राम શું કહે છે कि भरत, तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं माता पिता की आज्ञा हेतु वन में आया हूँ, तो वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा, ऐसे बताते हैं। एक नागरिक मतलब जो भरत की सेना के साथ आए थे वो कहते, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। हर एक राजा का कर्तव्य होता कि अपनी राज्य के, नगर के प्रजा को सुखी रखना उनका कर्तव्य होता है। तो एक नागरिक उसे राम को कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप हमारे साथ चलना होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना आपका कर्तव्य है। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम क्या कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। नगरजनों जो आए थे उसको राम ने बताया कि इस वक्त मेरी
मेरा पहला धर्म ये है, कर्तव्य यह है कि मैं अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करूं। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक आप भरत को राजा माने, भरत आपके सुख दुख का ख्याल रखेंगे, ऐसे कहते हैं। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम बोले, क्या चाहते हो? इस चित्र में आप देख सकते हो। भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दे दें। क्या कहते हैं कि मुझे आप मेरे आपकी पाँव की खड़ाव दे दें। खड़ाव यानी लकड़ी की जो बनी पादुका है। पहले जो ऋषि महात्मा वो लकड़ी की पादुका पहनते थे। आप सबने जो सीरियल में देखी होगी, अगर कुछ फ़ोटो होगी ऋषि महात्मा की तो उसमें भी आपने देखे होंगे। तो ये खड़ाव ये राम से भरत मांगते हैं। राम, खड़ाव का क्या करोगे? पूछे छे कि खड़ाव को क्या करोगे? भरत ने कहा, इनसे सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे। वो सिंहासन पर राम की जो खड़ाव है उसे रखना चाहते थे। वो बोलते हैं कि जब तक आप नहीं लौटते तब तक मैं ये खड़ाव सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। एक सेवक बनकर वे राजकाज करेंगे। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना मतलब आनंदित होना, पुलकित होना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय जय बोलते हुए विदा होते हैं। बच्चों, जब राम की खड़ाव लेकर भरत जाते हो और सिंहासन पर खड़ाव रखकर उसकी पूजा करता है, और वो इतनी कठिन तपस्या उनकी, जो राम से भी ज़्यादा कठिन तपस्या भरत ने की होगी, क्योंकि वो जब राम जो सन्यास वाले कपड़े में वनवास गए थे तो उसने भी वो राजघाट वाला, वो राजा वाले कपड़े को त्याग दिया था, और राम के जैसे ही वो एक सादे कपड़े में, सन्यासी के कपड़े में उन्होंने प्रजा की अच्छी तरह से सेवा की, और हर रोज़ वो पहले राम की खड़ाव को पूजा करते हुए उसकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने राजकाज किया। वो तो राम से भी ज़्यादा कठिनाई उन्होंने झेली है। तो कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा।